Good evening, all of you. I am Saif from ET department, and today we are going to discuss on a very important topic, which is LinkedIn, and how we can use it to build our personal brand. इस प्रेजेंटेशन हम समझेंगे कि LinkedIn का यूज़ क्या है, इसको लोग प्रोफेशनली कैसे यूज़ कर सकते हैं, and with the help of it, how you can grow your business, increase your career, and you can develop a community which would help you to become and reach at the next level, either of your career or business. बहुत सारे लोग लिंक्डइन के बारे में जानते ज़रूर है, लेकिन इसको प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर पाते हैं। एंड अगर इसको ठीक से यूज़ किया जाए तो ना केवल आपकी सेल्स बढ़ाने में, बल्कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ आप तक खुद पहुंच सकती हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। लेकिन होता यह है कि बहुत सारे लोग, हमारे और आपसे जैसे लोग हु वर्क इन ऑफिस और हु आर engaged in some kind of learning activity, they don't know how to use LinkedIn professionally. इस प्रेजेंटेशन में हर एक बात को ध्यान रखा गया है ताकि आपको एक एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जा सके, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा सके किस तरह से यू कैन यूज LinkedIn टू बिल्ड योर ओन प्रोफेशनल ब्रांड। तो चलिए प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। LinkedIn, as we all know, that it is the world's largest professional network. See, uh, today is the world of social media. Everybody is available on any kind of social digital media platform like Facebook, Twitter, and Instagram. So many platforms are there. But LinkedIn is very, very different from all other platforms. Now, why I'm saying that it is different, the only reason is that LinkedIn is not a platform where anyone or everyone can reach out. Definitely everyone can be a part of it, but it is a platform which is professionally available, made available to the people who work in corporate offices, who are associated at a good position, who are entrepreneurs, or people who are engaged in some kind of a professional transaction or communication with the professional world. So you will find like in Facebook, we can use any kind of language or we can post anything, but the same thing doesn't happens with the LinkedIn. In LinkedIn, what happens that only people who are into professional world, who are looking for people, who are sharing their skills, who want to train and motivate people, who are hiring people, or who are looking for to share their knowledge and want to get some knowledge. So such kind of world you will find all over LinkedIn, and that is why, since LinkedIn is the platform where so-called people are available, it becomes the world's largest professional network on the internet, right? So how can you use LinkedIn? You can use LinkedIn to find right jobs or internships, connect and strengthen professional relationships. So when I say professional relationship, everything is like related to your business, it is related to your studies, it is related to your personal and professional growth, related to your career, and you can learn the skill you need to succeed in the career. So it is a complete package where you can overall grow yourself and reach to the next level of your career, right? So LinkedIn provides that. So that is why it is a very, very big platform, and it is a very important platform for any one of let it be me or you, who wants to reach to the next level. And if you are a student, let it be you are a working professional, or you are working, or you are doing some studies or research, LinkedIn is a better place because you can find people of your kind over there. Unlike Facebook or any other kind of social media platform which is just made for entertainment, LinkedIn is very, very different because it is not for entertainment, it is only meant for professional growth and development. So this needs to be taken care of. That is the reason that most of the people throughout the world, from multinational companies, and so many people are, you can find every one of them over LinkedIn. सो लिंक्डइन हाउ इट इज डिफरेंट, आई जस्ट टोल्ड यू कि लिंक्डइन कैसे डिफरेंस है। अगर जैसे कि अगर हम बात करें डोनट के ऊपर बात करें, तो फेसबुक लुकिंग, आई लाइक डोनट्स, मुझे डोनट्स खाना अच्छा लगता है, मैं डोनट्स यहाँ खाता हूँ, वहाँ खाता हूँ, आप खाएंगे क्या, एंड देन यू आर राइटिंग एनीथिंग, यू कैन राइट एनीथिंग। बट ऑन लिंक्डइन इट इज अ डिफरेंट, आपको बात करते हैं माई टॉप स्किल्स आर डोनट प्रोडक्शन एंड सेल्स ना। वही डोनट में हम बताते हैं लोगों को क्या कि मेरी स्किल है डोनट प्रोडक्शन, मेरी स्किल है डोनट की सेल्स, मेरी स्किल है, मैं बना सकता हूँ। So I can use my skill commercially. I can teach someone how to sell donuts, or I can tell someone how to make donuts, or I can help you learn how you can increase the market of donut production and donut sales. If you're going to enter into donut business, I can make you reach the next level. So this is quite different, if you see that.
a topic that is being discussed randomly over the Facebook, you will find it in a more organized and systematic way done on the LinkedIn. And that is why LinkedIn is very different from other social media tools, and it becomes very, very professional, and one has to take care of utmost care what he is writing, what he is posting, because it is read by people who are working at a top level. They are the people who are holding key responsibilities. Someone may be heading a team of around 1,000 people, or someone will be even a CEO of a company. So everybody is reading and everybody is learning, and so everybody is having an idea like what kind of person is on the internet. But same doesn't go on the Facebook is totally like a platform where you can share, you can share whatever you want. Let it be an emotional thing, let it be a personal thing, you can share whatever. But in at LinkedIn, nothing such happens. It is just a platform where skills, knowledge, and competencies are shared and learned both the ways. So विद द हेल्प ऑफ लिंक्डइन सैकड़ों करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने नौकरियां पाई हैं, अपने आप को इंटर्नशिप से जोड़ा है. एज अ स्टार्ट्स 2.5 मिलियन पीपल ऑन लिंक्डइन आर हायर्ड थ्रू देयर कनेक्शंस एवरी ईयर. हर साल इतने लोगों को नौकरी मिलती है. इट्स अ गुड नंबर, बिग नंबर. और ओवर 10 मिलियन एम्प्लॉयज पोस्टिंग 7.5 मिलियन जॉब्स पर मंथ. अब जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि जो सॉरी एम्प्लॉयर्स आर पोस्टिंग, so many people are posting their jobs, so it is a big place where you can find jobs. तो जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है, दे आर लुकिंग फॉर जॉब, दे आर सर्चिंग फॉर जॉब्स एंड दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू यूज लिंक्डइन प्रोफेशनली. उनको यही नहीं पता लिंक्डइन यूज कैसे करते हैं. लेकिन अगर आप स्टार्ट को देखें तो ये बहुत क्लियर है कि कितना बड़ा ये स्पेस है, कितना बड़ा ये पूल है. और अगर किसी को ठीक से इसे यूज करने आता है, यू जस्ट इमेजिन a plethora of opportunities is waiting for him or her, and the only thing is required is just you learn how to use LinkedIn professionally. And 92% of the recruiters use LinkedIn every day, so that means it is the number one choice of the recruiters. 92% एक बहुत बड़ा नंबर है. It means that almost 9 out of 10 companies are using it, the professionals are using it, and everybody's the first choice is LinkedIn for hiring, recruiting, selecting, and training people who want to become the workforce. So before like we talked about personal brand, but first of all, what brand is, what is a brand, and what does it do? So we are going to learn so many things. Like if I want to brand myself, I want to become a brand, I want to be a person who is everybody's choice. Like हम जब किसी इंटरव्यू में जाते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम भी तो यही चाहते हैं ना कि अगर 100 लोग आए तो 100 लोगों में सिलेक्शन अगर किसी का हो तो सिर्फ मेरा हो. अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, कोई ग्रोथ ऑप्शन मिले तो वो किसी को मिले, वो मुझको ही मिले, वो मेरे पास ही है. और मुझको ही क्यों मिले? क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं ही अपना एक ब्रांड हूं, मैं ही वो चीज हूं जो हर चीज को फुलफिल कर सकती है. लेकिन पहली बात तो ये है कि मैं ब्रांड हूं या नहीं. और अगर मैं ब्रांड नहीं हूं, ठीक है, अगर इस बात को हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि हम बनना तो चाहते हैं लेकिन अभी हम वो है नहीं. हम वो नहीं है जिसके बारे में हर कोई इंसान जानता है. हम वो नहीं है जिसे हर कोई इंसान अपने आप भुलाना चाहता है. तो अभी हमें वो बनना पड़ेगा. लेकिन वो बनने के लिए पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा ना कि क्या चीज एक अच्छा ब्रांड बनाती है. व्हाट मेक्स अ गुड ब्रांड. एक गुड ब्रांड के लिए क्या क्या फीचर्स, क्या क्या एसेंशियल्स होने जरूरी हैं. क्या आप अपने ब्रांड को पहचान पाते हैं कि आप एक ब्रांड हैं या नहीं, और किस तरह के ब्रांड बनना चाहते हैं. एंड हाउ कैन यू शो दैट यू आर द राइट चॉइस फॉर देम. हाउ कैन यू शो दैट यू आर द पर्सन दे वर लुकिंग फॉर. You are the person who can do all the things that your potential employer is looking for, and getting paid high, getting paid at a higher level of salary. You're getting high recognition, high respect, and you're landing in the same job that you always want to do. ये कैसे होगा? जब आप अपने आप को ब्रांड बनाओगे. लेकिन पहले ये तो समझे ब्रांड क्या होता है, ब्रांड कैसे होता है, ब्रांड का एक्चुअली ब्रांड कहते किसे हैं जो हम बनना चाहते हैं, एवरीबॉडीज चॉइस बनना चाहते हैं, कैसे होता है ये. तो इसको समझने के लिए ब्रांड की एक सिंपल सी बात है, ब्रांड इज अ प्रॉमिस. ब्रांड क्या है? ब्रांड एक प्रॉमिस, एक वादा होता है. किससे? क्लाइंट से, कस्टमर से, स्टेक होल्डर से, जितने लोग आपसे मिले हैं उन हर आदमी से एक वादा होता है. जो भी बात आप कहते हैं ये दिखाता है कि आप और आपके प्रोडक्ट्स किस तरह से अलग हैं, आप कितने अलग हैं, बेहतर हैं दूसरों से. हाउ गुड आर यू देन अदर्स. ये एक तरह का कमिटमेंट होता है कि जब आप कहते हैं कि ओके आई एम गुड देन अदर्स, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट एंड these are my skills, these are my strengths, these are my competencies. When you say all this, so actually you are telling how different are you from others. So when you are
projecting yourself different from others, actually you are projecting that you are having a unique quality, you are having a unique commitment, you are actually doing a unique promise of satisfying them by projecting yourself as the promise doer. और हम कह सकते हैं कि आप वादा कर रहे हैं कि आपकी चीजें दूसरों से बेहतर होंगी, एंड दैट मीन्स that they can invest money in you, they can trust you, and so they should hire you. The brand is a promise of commitment. Whatever you do about yourself or about your product, it is just a promise. So this is brand is. So इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस तरह से एक प्रोडक्ट मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट से जब तक अलग नहीं दिखता वो बिकता नहीं। इसका मतलब तो बहुत साफ है कि अगर मैं हूं या कोई भी हो, वो अपने आप को जब तक ये नहीं दिखाएगा कि मैं दूसरों से अलग हूं, मैं दूसरों से डिफरेंट हूं, तब तक तो वो सेल या कह लीजिए कि तब तक वो जॉब या वो अपॉर्चुनिटी तो मुझको भी नहीं मिलेगी। जैसे कि उस प्रोडक्ट को शेल्फ पे जगह नहीं मिलेगी, वैसे मुझे किसी एमएनसी में जगह नहीं मिलेगी। तो उसी तरीके से मैं ये कैसे कर पाऊंगा, हाउ विल आई टेल द पीपल दैट आई एम यूनिक फ्रॉम अदर्स, ये मैं कैसे कर पाऊंगा। इसी बात को समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं या लेटर ऑन कर सकते हैं कि आप दूसरों से अलग हैं। तो सबसे पहले, अब आप अपने बारे में तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका आप ये करिए कि अपने दोस्त को बुलाइए, बेस्ट फ्रेंड को बुला सकते हैं, और आप बैठ के उसके साथ ब्रेनस्टॉर्म करिए कि वो अगर जो आपका दोस्त है वो आपको 3 पावरफुल वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेगा। यानी अगर उसको कहा जाए कि दैट ही हैज टू डिस्क्राइब यू नॉट इन पैराग्राफ्स, नॉट इन sentences, but only on 3 words, what could they possibly be, what could the possibly words would be, how he can describe you. So with the help of such kind of activities, you'll be able to know how people see you, how people identify you, just like a brand or a product, how people they see you, what qualities, what you can say what attributes they identify about you, and so you can have do this activity with multiple people, और बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि लोगों के बीच में आपकी वो यूनिक इमेज क्या है, वो यूनिक बात क्या है। जैसे कुछ लोग कहते हैं बड़ी बहुत फ्रेंडली है, बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत प्रोएक्टिव है, बहुत अडेप्टेबल है। तो उसी तरीके से वो ये चीजें जिस तरह से पता चलती हैं, और यही चीज याद रखिए कि प्रोफेशनल दुनिया में भी, ठीक है, प्रोफेशनल दुनिया में भी यही कीवर्ड्स, यही क्वालिटीज, यही प्रोजेक्शंस आपको सैकड़ों की भीड़ में अलग करते हैं, आपको एक अलग पहचान देते हैं। यही तो ब्रांड हुआ। जैसे मैंने कहा ना, ब्रांड इज अ प्रॉमिस ऑफ योर क्वालिटीज, ऑफ योर प्रोडक्ट्स, प्रोमिसेस दैट यू डू योर कस्टमर्स। तो उसी तरीके से कि आपने क्या यूनिक सर्विस देनी है, उसी तरीके से यही चीज आपको ब्रांड बनाती है। और ये एक्टिविटी करके आपको बहुत कुछ अपने बारे में डीपर इंसाइट मिलेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग ये एक्टिविटी जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, हु आर यू इन द आईज ऑफ अदर्स, आप क्या हैं दूसरों की निगाह में। आप ये तब बता सकते हैं, यू कैन शेप योर ब्रांड बाय द वे यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ टू अदर्स। ठीक है, आप भी अपने ब्रांड को एक शेप दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, अपने ब्रांड को कैसे लोगों के बीच में अच्छा बना सकते हैं, अपनी इमेज कैसे अच्छी कर सकते हैं, बाय द वे यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ अदर्स। अब डिजिटल दुनिया में क्या होता है, ये जो लिंक्डइन की दुनिया है या फेसबुक की दुनिया या कोई भी दुनिया ले लीजिए, उसमें सब सीधी बात यह है कि वहां आप नहीं होते, आपकी डिटेल्स होती हैं, आपकी इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन चाहे वो स्किल हो, स्ट्रेंथ हो, एक्सपीरियंस हो, अचीवमेंट हो, सर्टिफिकेशन हो या कुछ भी हो, उसको किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं आप, क्या बताते हैं लोगों को, वो चीज आपके एक्चुअली ब्रांड को शेप करती है। ठीक है, वो चीज ये बताती है कि क्या एक्चुअली में आप हैं और क्या हैं आप, क्या आप हैं और क्या आप हैं, या क्या हैं आप, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि हाउ यू रिप्रेजेंट टू अदर्स। तो सबसे पहली बात यह है कि ब्रांडिंग को समझना और ब्रांडिंग को करना, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसको क्रिएट करने के लिए जो है हमें ये कुछ 4-5 चीजें जिनकी बात करेंगे। सबसे पहली बात क्या होता है, रिमेन इन फोकस, हमेशा हाईलाइट में रहना है, कुछ ना कुछ लिखते रहना है, कुछ ना कुछ लाइक करना है, कुछ ना कुछ कमेंट करना है, कुछ नेटवर्क बनाने, कुछ कनेक्शन करने हैं। दैट इज यू हैव टू स्टे इन फोकस, क्योंकि whatever you do on a social media platform like LinkedIn, and which is a professional platform as well,
सो यू शुड रिमेन इन फोकस। ऐसा नहीं कि आप आज आए और फिर एक हफ्ते तक या एक महीने या एक साल तक 6 महीने तक आप गायब हो गए, ऐसा नहीं करना है। तो यू हैव टू रिमेन इन फोकस। सेकंड है बी द पीपल्स चॉइस, ऑलवेज यू नो बी अ पर्सन who is always liked and followed by people. That means you are giving value to the people who are around you. You are making them learn, you are making them grow in their field, you are sharing your experiences जिनसे उनको फायदा हो रहा है, so they are choosing you, they are liking you, so you do all good as you can. recommendations लिखना है, रिफर करना है, जॉब बतानी है, किसी की हेल्प करनी है, किसी कुछ गाइड करना है, ऐसा कुछ भी करके you become the people's choice. Create the first impression whenever you meet someone. Like you have to be very much sure that like your profile should be something like, if somebody is visiting you on the LinkedIn, now the first thing that he sees is your picture and everything, the details. So it should be something like you create your first impression and last to get noticed. Like, so you are posting your skills, your relevant learnings what you have in such a way that people are noticing you. So that means you are in the limelight. So that is, and to do all these things, what need to do? Simple. You have to make a strong LinkedIn profile. लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग है, ये चारों चीजें अपने आप हो जाएंगी। लिंक्डइन प्रोफाइल बेकार है, कमजोर है, तो ये चारों चीजें नहीं होंगी। इसीलिए लिंक्डइन पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी लोग कहते हैं कि आई डोंट गेट एनी अपॉर्चुनिटीज, मुझे फायदा नहीं हो रहा है, मैं इसे यूज करना नहीं जानता। तो यूज करोगे तभी तो आएगा ना, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं ऑनलाइन मीडिया में, हम चाहते हैं कि वो वायरल हो जाए, उसी तरीके से अगर आप लिंक्डइन पे भी प्रोफेशनली बहुत सारे नेटवर्क और कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप तक जॉब्स आएँ, एचआर खुद आपसे बात करें, आपके पास कुछ जॉब्स रिकमेंडेशंस आएँ और आपका एक प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़े, तो उसके लिए आपको एक लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत स्ट्रांगली बनानी पड़ेगी। अब लिंक्डइन प्रोफाइल को बनाने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आपको linkedin.com पे लॉगिन करना है और वहां जाकर आपको अपनी लोकेशन, इंडस्ट्री और लिंक्डइन ज्वाइन करने का रीजन क्या है, आप लिंक्डइन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या रीजन है, प्रोफेशनल है, आप स्टूडेंट हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं, या फिर आप एक फ्रीलांसर हैं, क्या हैं आप, तो आपका क्या रीजन है, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोच करना चाहते हैं, कोई सेल्स करना चाहते हैं, व्हाट इज योर रीजन। तो ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ती हैं। तो जब आप कुछ लॉगिन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देता है लिंक्डइन का। पहली बार जब हम लॉगिन करते हैं, यहाँ पर ईमेल और फोन नंबर और आता है आपका पासवर्ड, लेकिन खैर जब आपका होता है तब, नहीं तो आपको साइन इन करना पड़ता है। और यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू विद योर गूगल लॉगिन एज वेल। तो पहले आपको साइन इन करना पड़ता है। तो साइन इन करना तो आप बहुत सिंपल है लिंक्डइन पे, और साइन इन करने में ये 3 चीजें हमें करनी पड़ती हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो अब हम आप बात करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल को क्रिएट करने की। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है। अकाउंट में सारी डिटेल्स, फॉर एग्जांपल योर मोबाइल नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ एंड all other education details you have to mention. Then you have to add your profile in which your different sections like your competencies, skills and all other things, choice preferred, locations, your preferences, everything is there. तो आपको add your profile पे जाना है। उसके बाद then you add your photo. This is very important because it is your, like everybody is is just seeing you virtually. So the first thing that gives an impression of your personality is your photo. So you have to do these 3 things. You have to set up your account, add your profile details, and then you have to add your photo. Once you do this, so you have to ensure that after doing that, you have to ensure that you are building your profile to attract the employers. That means it is engaging. You are making a captivating profile. Like when any HR comes on the internet or logs on to LinkedIn, and he just goes through your profile, he finds it interesting. Okay, fine, this person can do this thing, ये इतने सारे काम कर सकता है, तो चलो उसको देखते हैं। या ये बंदा बहुत काम का है, इसको कितनी सारी चीजें आती हैं, he can be a part of it, he can be a value adder as well. तो लिंक्डइन का ये जो है, तो आपको सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी चीजें बताई हैं, ये चारों चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एडिटिंग, प्रोफेशनल प्रोफाइल, प्रोफेशनल फोटो एंड रीजन फॉर ज्वाइनिंग, ये 4 चीजें बढ़नी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ध्यान ये रखना है कि आपको एम्प्लॉयर्स को अट्रैक्ट करना है। यानी आपको ये समझना है कि आजकल के एम्प्लॉयर्स, आप जिस भी इंडस्ट्री में, तो उस इंडस्ट्री में न्यू हैपनिंग क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में लेटेस्ट एडवांसेस क्या हो रहे हैं,
वो कौन से ऐसे नए स्किल्स हैं आपकी इंडस्ट्री में जो आजकल रिक्रूटिंग एजेंसीज को हायर हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में से अगर आप हैं तो एआई एमएल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। और आजकल अगर बात करूँ कि बहुत सारा वो आ रहा है आपका, रिसाइक्लिंग के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है। तो उसी तरीके से आपको ये देखना है कि आपकी जो भी इंडस्ट्री है, जो भी कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में हैपनिंग, हॉट एंड हैपनिंग क्या चल रहा है, और वो स्किल्स अगर आपके पास हैं या नहीं हैं तो आप मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो आप उसके सर्टिफिकेट कर सकते हैं। लिंक्डइन पे भी सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं, आप उसके शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज जो 45 मिनट से लेके 30 मिनट से लेके 8 डे से और 10 डेज तक के भी कोर्सेज हैं, आप उनको कर सकते हैं। उनको करके आप अपने प्रोफाइल को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है। सबसे पहले आते हैं प्रोफेशनल प्रोफाइल के ऊपर। देखिए, प्रोफेशनल प्रोफाइल सबसे पहली बात क्या होती है कि ये आपका एक शॉर्ट समरी होती है, एक इंट्रोडक्शन होता है। तो प्रोफेशनल प्रोफाइल ही सबसे पहले गूगल पे दिखती है कुछ इस तरीके से, राइट? इट इज द फर्स्ट थिंग दैट हिट्स अप ऑन द गूगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टे एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया टू बिल्ड योर सोशल प्रेजेंस। आप एक्टिव हैं, आप चीज़ें पोस्ट करते हैं, पढ़ते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसको उसके ऊपर अपने कुछ और इंसाइट्स देते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि आप ऑनलाइन भी मौजूद रहते हो, आप ऑनलाइन भी रहते हो और बहुत केयरफुली पोस्ट करते हैं ताकि लोग ये समझें कि ये बंदा जो है, इसके पोस्ट बड़े इंफॉर्मेटिव होते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं ना कि वो कुछ भी रैंडमली पोस्ट कर देते हैं। तो देखिए, लिंक्डइन में कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन इससे आपकी ब्रांड खराब हो जाएगी, आपकी इमेज खराब हो जाएगी। ये बंदा नॉनसेंस पोस्ट करता है, इसकी बातों में कोई इलॉजिकल लॉजिक नहीं होते क्योंकि उसको हर कोई पढ़ रहा होता है। तो या रैंडमली आपने किसी को भी कुछ भी कमेंट कर दिया और लिखते वक्त भी आपसे काफ़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गई, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं होती हैं। प्रोफेशनली इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ऐसी गलतियां हम ना करें, ऐसी मिस्टेक्स हम ना करें, क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स करने का सीधा सीधा मतलब है कि दैट यू आर स्पॉइलिंग योर इमेज। एंड डेफिनेटली एक बार इमेज चली गई, एक बार इमेज खराब हो गई, देन इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड इट, एंड दैट टू वर्चुअल मीडिया प्लेटफॉर्म है। भाई आमने सामने तो है तो आप यू कैन गिव सम एक्सप्लेनेशन कि दैट व्हाट हैपेंड, बट वर्चुअल दुनिया में ऐसा नहीं होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज़ वाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बहुत फेमस क्लिश है, सबने सुना ही होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बात को हम ध्यान में रखें कि जो हमारा इंप्रेशन है वो खराब ना हो। और प्रोफेशनल प्रोफाइल तो पहली चीज सामने पॉपअप करती है, तो बहुत केयरफुली पोस्ट करें, स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, और जो कुछ लिखें बी ट्रू टू योर वर्ड्स, write your right aspirations, what you want to do, what you want to do, and what you have done. So be very very specific, be very very transparent, right? Now फोटो की जहां तक बात आती है, you have to dress very professionally. Dress professionally means that you dress coat, pant and shirt, or you can wear ethnic as well, and you can use your corporate attire as well, or you can be into formal. बैकग्राउंड वाइट रखें, जैसे फोटो खींच रही है तो बैकग्राउंड वाइट रखिए, प्लेन रखिए, ऐसा नहीं बहुत कलरफुल बैकग्राउंड हो। एंड देन कीप अ कैरिज्मेटिक स्माइल, ऑलवेज कीप अ स्माइल सेम लाइक दिस, ठीक है? मुस्कुराते रहिए। और स्माइल से क्या होता है ना कि इट गिव्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन दैट अ पर्सन इज एंथुसियास्टिक एंड ही वांट्स टू डू समथिंग इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ। तो ये तीन चीजें हैं फोटोज के बारे में। इसके ये चीजें बड़ी बेसिक हैं, बट पीपल डोंट पे अटेंशन टू इट। और फिर कभी कभी तो फोटो से भी कहते हैं कि इमेज खराब हो जाती है। अब बात करते हैं एडिटिंग की ओर। आप जब लॉगिन कर लोगे, वंस यू लॉगिन, देयर विल बी अ मी ऑप्शन, उस पर फोटो लगी होगी, मी ऑप्शन। यू क्लिक ऑन द मी ऑप्शन ऑन योर लिंक्डइन पेज, एंड ऑन द राइट ऑफ साइड ऑफ द पेज यू विल फाइंड एन ऐड न्यू प्रोफाइल सेक्शन। वहां पे ऐड न्यू प्रोफाइल सेक्शन आपको दिखाई देगा। आप जैसे ही वहां क्लिक करोगे, आपके सामने सारे बॉक्सेस खुल जाएंगे, और बस अब आपको क्या करना है, वहां जाकर अपनी डिटेल्स को फिलअप कर देना है। बस आपको डिटेल्स भरनी है। फिर मैं ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक से बचिएगा, डिटेल्स को आराम से भरिएगा, और कोई भी चीज बस लिखने के लिए मत लिख दीजिएगा, लिखिएगा, प्रोफेशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है? जैसे ओपन टू टॉक की जगह आप यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, या साउंड इन पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, एंड वॉट एवर यू कैन से अबाउट योर स्किल्स पर्टिकुलरली। एडिटिंग में ये 5 चीजें होती हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। वर्क इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आपको डालना है, एजुकेशन सर्टिफिकेशन, लोकेशन, इंडस्ट्री, स्किल्स, प्रोग्राम एनरोल्ड एंड इंडस्ट्री। यू कैन अपडेट ऑल ऑफ द सेक्शंस कि आपने वर्क कहाँ किया है, क्या इंटर्नशिप्स थी आपकी, क्या एजुकेशन रही है आपकी, क्या सर्टिफिकेशंस रहे हैं,
किस लोकेशन में आप रहते हैं और क्या किस इंडस्ट्री में हमने काम किया है, कौन कौन से स्किल्स आपको आते हैं, स्किल कोई भी चीज़ जिसको आपने बहुत लंबे समय तक किया है, सर्टिफाइड है सर्टिफाइड नहीं है, कितने प्रोफिशिएंट हैं आप उसमें, प्रोग्राम्स कौन कौन से आप एनरोल्ड हैं, किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं कोई और ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी एडिटिंग में आ जाती हैं जिसको भरना होता है। प्रोफाइल कंप्लीटनेस 100% तो बहुत अच्छी बात है, मगर कई लोग क्या करते हैं कि एनरोल कर लेते हैं और अपना सेक्शन अपडेट नहीं करते हैं। ये आपके प्रोफाइल के लिए घातक हो सकता है, बिकॉज इनकम्प्लीट प्रोफाइल पे व्यूज नहीं आते हैं और प्रॉपर तरीके से इनकम्प्लीट प्रोफाइल को एड्रेस भी नहीं किया जाता। तो पहले प्रोफाइल कंप्लीट करिए। हेडलाइंस और समरी के ऊपर बात करें तो हेडलाइंस ये बताते हैं छोटी छोटी बात की आप कौन हैं, हु आर यू, यानी ब्रांड की बात करती है, एंड और ये है कि रिक्रूटर्स को आप क्या कहना चाहते हो, रिक्रूटर्स को आप क्या बताना चाहते हो अपने बारे में कि आपको क्या आता है खास तौर से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई कंटेंट राइटर है, आप एक ब्लॉगर हैं, आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, या फिर आप एक कह सकते हैं आप एक सिर्फ एक सिंपल राइटर हैं, या फिर आप एक ट्रेनर हैं, लैंग्वेज ट्रेनर हैं, वर्बल वर्बल पढ़ाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स पढ़ाते हैं, कुछ भी आप करते हैं, ठीक है, या आप एक आर्टिस्ट हैं, तो वो सारी चीजें आपकी हेडलाइन में करती है जो कि ऐसी होनी चाहिए कि रिक्रूटर्स को अपील करे, रिक्रूटर्स को अट्रैक्ट करे। समरी में क्या होता है कि आप बस छोटे में बताते हैं कि आपने अभी तक क्या हासिल किया और आपके सपने क्या हैं, अभी तक क्या क्या कर चुके हो आप, ठीक है। समरी मीन्स सारांश, इन शॉर्ट अ ब्रीफ समरी में आपको बताना है कि आप अभी तक क्या कर चुके हो और लाइफ में क्या करना चाहते हो। ये बात ध्यान हमें रखनी है कि चूंकि यू आर राइटिंग अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, याद रखिए कि आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से लिखिए, क्योंकि आपके गोल्स और आपके एचआर के और या आपकी पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अगर मैच नहीं होते हैं, दे शुड बी इन अलाइनमेंट ऑफ देम, तभी तो वो आपको हायर करेंगे ना। अगर आप कहोगे कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और आप एक जॉब में अप्लाई कर रहे हो, तो वो बंदा ये कहेगा ना कि अगर आपका एस्पिरेशन बिजनेस करने का है या अब्रॉड जाने का है तो आप यहाँ अप्लाई क्यों कर रहे हो, आप तो कुछ दिनों बाद छोड़ ही दोगे। तो ये अलाइनमेंट होनी बहुत जरूरी है। ये बात ध्यान रखिए कि हमारी समरी और हमारी हेडलाइंस दोनों लाइन बाय लाइन चलें, ठीक है। तो यहां तक तो बात हमारे हो गई प्रोफाइल क्रिएशन की और प्रोफाइल एडिटिंग। हमने हेडलाइंस को भी समझा, हमने समरी को भी समझा। अब हम बात करते हैं नेटवर्क पे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नेटवर्क। नेटवर्क इज द पावर, नेटवर्क इज नेटवर्थ, किसी ने बहुत खूब कहा है। जिसके पास नेटवर्क है उसकी नेटवर्थ है, जिसके पास नेटवर्क नहीं उसकी कोई वर्थ नहीं, वो वर्थलेस है। ऐसा क्यों है? अगर हमारे कनेक्शन ही नहीं है, हमारे रिलेशनशिप ही नहीं है, चाहे तो इन अ पर्सन, अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त नहीं, आपको कोई जानने वाला नहीं है, तो ना आपको कोई रेफर करेगा, ना आपको कोई हेल्प करेगा, ना आपको कोई बताएगा। और ये दुनिया जो है, हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं, एक दूसरे की हेल्प हम करते ही हैं। तो ये जो नेटवर्किंग है इसको करना बहुत जरूरी है। इसको करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ बताई जाएंगी। वो भले ही देखने में बहुत छोटी हैं, मगर उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। दे हैव अ मासिव इम्पैक्ट। और हाँ, किसी भी चीज को करने के लिए ये नहीं आपने एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, रिजल्ट आ गया, नहीं। इट हैज टू बी डन कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली, लगातार लगातार करना है। तो आपको 2-3 महीने में ही इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे योर कनेक्शंस आर बिल्डिंग। और किसी भी सोशल मीडिया में कामयाब होने के लिए हो, ठीक है, चाहे वो पिंटरेस्ट की दुनिया हो, चाहे वो आपकी इंस्टाग्राम की दुनिया हो, फेसबुक की दुनिया हो, यूट्यूब की दुनिया हो, या लिंक्डइन की हो, आपको कनेक्शन तो बनाने ही पड़ेंगे। आपको लोगों से तो जुड़ना पड़ेगा ही। तो आपको नए कनेक्शन डिस्कवर करने पड़ेंगे, आपको कनेक्शंस को मैसेज भी करने पड़ सकते हैं, आपको करियर सपोर्ट देना भी पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और लास्ट में कम्युनिटी के साथ एंगेज होना पड़ेगा। राइट, आपको एंगेज होना पड़ेगा उनके साथ, एक ताल्लुकात बनाना पड़ेगा। कभी आप उनको सपोर्ट करोगे, कभी वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये सब चीजें, जो ये चारों चीजें हैं, यहीं से तो आपका नेटवर्क बनना शुरू होगा, यहीं से तो आपकी जर्नी शुरू होगी। ये जो जर्नी है, सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क डिस्कवरिंग एग्जिस्टिंग कनेक्शंस के लिए सबसे पहली बात आप जाइए नेटवर्क में, जाइए ऑन द टॉप नेविगेशन, ऊपर नेटवर्क लिखा रहता है, और वहां पर आपको वो लोग मिल जाएंगे जिनको आप पहले से ही जानते हैं। सर्च बार में जाइए, आप सर्च कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या सर्च, आप किसी का नाम डाल के सर्च कर लीजिए। तो जैसे आपने किसी का नाम डाला, किसी को नेम से सर्च कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सीधे सीधे वो लोग मिल जाएंगे। आप कंपनी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं और कीवर्ड से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि कंटेंट राइटर्स को ढूंढ सकते हैं आप, या फिर आप डिजिटल मीडिया या डिजिटल मार्केटर्स को भी ढूंढ सकते हैं।
तो जिसको भी ढूंढना चाहेंगे आप उनके कीवर्ड से डिजिटल मार्केटिंग डाल दीजिए, तो एक कीवर्ड है कंपनी के नाम से, जैसे विप्रो है, कॉग्निजेंट है, टीसीएस है, किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। रेविंग्स है, रेविंग्स के बारे में आप डालेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। नेम है, नेम से सर्च कर सकते हैं आप, सैफ खान डालिए आपको मैं मिल जाऊंगा। और तमाम किसी अपने फ्रेंड को XYZ को ढूंढना चाहते हैं तो आप इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले तो जाइए नेविगेशन बार में आप नाम सर्च कर दीजिए। जब आप नाम सर्च करेंगे तो आपको सजेस्ट करना शुरू करेगा और आप जिसको पहचानते हैं आप मैसेज कर सकते हैं। एक बार कनेक्शन बिल्ड हो जाने के बाद आपको अपने एग्जिस्टिंग कनेक्शंस जो आप बना चुके हो, जिनको हमने पहले बनाया था पिछली स्लाइड में, यानी इस वाली स्लाइड में, तो हमने एक बार सर्च किया, हमने रिक्वेस्ट भेज दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उनको मैसेज भी तो करना है, वरना वो भूल तो नहीं जाएंगे कि भाई नया 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 फ्रेंड हमारा बना है। ठीक है, और अगर पुराना भी हो तो मैसेज तो हमें रेगुलर करना पड़ता है ना, वरना एक कनेक्शन सा टूट सा जाता है। तो आपको मैसेज करना है डायरेक्टली, किससे करना है? लिंक्डइन मैसेजिंग पेज से। इसमें लिंक्डइन पे एक मैसेजिंग पेज होता है, आप वहां से मैसेज भेज सकते हैं, बिल्कुल गूगल चैट की तरह। वहां पर आप मैसेज जाएंगे, वो भी मैसेज का जवाब आपको देंगे। आप अपने कनेक्शन पेजेस के से भी भेज सकते हैं और उनके अकाउंट पेज पर भी जाके आप लिख सकते हैं। ये तीनों ही तरह हैं, चाहे आप अपने पेज से करें या उनके पेज से करें या फिर आप मैसेजिंग का इस्तेमाल करें, यहां से आप जाके उनको मैसेजेस भेज सकते हैं। इससे क्या होता है कि इंटरेक्शन डेवलप होता है और इस इंटरेक्शन से लगातार उनको याद रहता है कि हमने किससे बात की थी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, एचआर के साथ ऐसा नहीं होता है कि वो आपके मैसेजेस का आप अपने सीधे एचआर को भेजना शुरू कर दिया। दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ अटमोस्टली, लाइक सीधे सीधे आपने कहीं लिख दिया कि सर कोई जॉब हो तो बताइए, सर कैसे हैं आप, आपने मतलब कि आपकी डीपी अच्छी लग रही है। इस तरह की अनप्रोफेशनल टोन ऑफ लैंग्वेज से हमें बचना है, क्योंकि याद रखिए हो सकता है आपका मैसेज जेन्युइनली आपने हार्ट से लिखा हो, लेकिन हो सकता है कि उसका मीनिंग नेगेटिव निकल जाए। तो कैसे करना है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि whenever someone posts on the LinkedIn, everybody gets noticed of it. So whenever you see like a certificate, you can congratulate him. You can say sir, वहाँ ये मत लिख देना कि नहीं पार्टी चाहिए, हाँ इसका ध्यान रखना है। That you have to congratulate him. Okay sir, congratulations for completing your certificate. Would like to know that what other certificates are available, as I'm a student or I'm looking for some other certificate. Can you please suggest me? तो इस तरह की बातें जब आप करेंगे, लर्निंग की, स्किल की, अचीवमेंट की, एक्सपीरियंस की, डेफिनेटली वो आपसे एंगेज होंगे, क्योंकि वो भी तो इसीलिए है ना, उनकी भी तो प्रोफेशनल ग्रोथ हो ही रही है ना, और उनको भी तो अच्छा लगेगा कि दैट पीपल आर अप्रिशिएटिंग देयर सर्टिफिकेशंस। सिमिलरली जब आप करोगे तो वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो मेन चीज है जो आपको करनी है, सबसे पहली बात अपना टाइम दीजिए। आजकल लोगों का रोना है मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम किसी के पास नहीं होता है, 24 घंटे ऊपर वाले ने सभी को दिए हैं, टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, आप 10 मिनट का क्वालिटी टाइम दीजिए। ज्यादा नहीं होता है आपको कि 1 घंटा एक दिन पूरा लगाना है, 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल लेके पकड़ के बैठना है, लैपटॉप लेके बैठना है। नो, 10 minutes daily can even help you to build a very excellent network. 5 minutes to post something valuable and 5 minutes to send some of the messages to your best connections or the people you want to be with. So invest time in your connection, that is very important. Second is join groups and exchange insights. This is very important. See, LinkedIn is full of people who want to learn so much, right? LinkedIn पे वो लोग भी हैं who can make you learn. They are educators, they are trainers, they are knowledge providers, and while there are so many other people who want to learn knowledge, जैसे आप लोग हैं, you are looking at this video, you are gaining something, you are knowledge takers. I'm so thankful to you for seeing my videos up till this point. आपने अगर देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू आपको, और अगर आप आगे देखते हैं तो थैंक यू इन एडवांस। और जो भी इनसाइट्स हैं, तो जैसे आपने कुछ सीखा, मैंने कुछ आपसे सीखा, तो ये जो सीखने सिखाने का जो एक प्रोसेस होता है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं, लोगों के साथ अपनी अपनी बात साझा कर सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन दूसरों का देखिए, जैसे ये मेरे फ्रेंड हैं या लेट मी इंट्रोड्यूस, इन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जब आप किसी और का परिचय उनको कराते हो। वो तो अपने बारे में तो हर कोई बताता है, दूसरों का इंट्रोडक्शन जब आप करते हो, इसे कहते हैं रिकमेंडेशन, या फिर आप कहते हैं इसको एक रेफरेंस, आप कह सकते हैं कि आप रेफरेंस दे रहे हैं। तीसरा है लाइक एंड शेयर थिंग्स दैट पीपल इन योर नेटवर्क विल केयर अबाउट। ऐसी चीजें करिए जिससे लोगों को मजा आए, अच्छा लगे, कुछ सीखने को उनको मिले। एंड गिव टेस्टिमोनियल्स एंड रिकमेंडेशंस टू अदर। डेफिनेटली ये बताइए लोगों को, टेस्टिमोनियल से बहुत फायदा होता है, कंपनीज का फेथ बढ़ता है। अगर आपके पास अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं अच्छे अच्छे लोगों के, डेफिनेटली एचआरस विल बिलीव दैट so many people know about this person, they are telling so much good about him, definitely he would be a good guy, he would be a good candidate। वरना टेस्टिमोनियल कोई क्यों ही देता। रिकमेंड करेंगे तो डेफिनेटली आप रिकमेंड करेंगे, आप भी रिकमेंड होंगे, और रिकमेंडेशन से मैं सच बताऊं बहुत जॉब्स आती हैं, बहुत ऑफर्स आते हैं। बस जब आप
कहते नहीं कर भला तो हो भला। तो जब आप इतना सारा करेंगे, टाइम देंगे, डेफिनेटली आपके साथ भी बहुत अच्छे अच्छे इसके रिजल्ट्स आएंगे। डेफिनेटली इस स्लाइड को आप ध्यान से देख लीजिए, ये करना होता है, इतना टाइम देना होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, यू आर लुकिंग सो मच ऑफ जॉब्स, तो कैसे सर्च कर सकते हो। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि लिंक्डइन का एक जॉब सर्च ऐप भी है, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, बट लिंक्डइन जॉब सर्च ऐप है, आप इसको डाउनलोड करिए, इट इज अवेलेबल, और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। दूसरा, आप जब अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो वहां पर ही आप अपना करियर इंटरेस्ट सेट कर सकते हैं कि मुझे किस किस चीज में इंटरेस्ट है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या क्या पसंद है, वो कर सकते हैं। आप डायरेक्टली जॉब्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ कीवर्ड्स आप उसको कर सकते हैं, और इसे बूलियन सर्च कहते हैं। किसी और वीडियो में कैसे किया जाता है सर्च, ये हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप जॉब्स को कीवर्ड्स के थ्रू सर्च कर सकते हैं। आप जॉब्स को रिव्यू कर सकते हैं कि इंटरेस्ट, कभी कभी क्या होता है कि जैसे प्रोफाइल में आपने क्रिएट किया, आपके कुछ प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, या फिर हुआ कि आपके पास जॉब्स आ रही हैं लेकिन मतलब आपके पसंद की नहीं आ रही, तो यू कैन रिव्यू द जॉब्स एज वेल। और आप कंपनीज को फॉलो कर सकते हैं। कंपनीज को फॉलो करना बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि जब कंपनीज को फॉलो करते हैं तो पूरा पूरा पूरी पूरी एक टीम, पूरी पूरी इंफॉर्मेशन, कंपनी के अपडेट्स आपको मिलने लगते हैं, और नेटवर्क जो आपने पहले बना रखा है उसकी भी हेल्प करके आप बहुत सारी जॉब्स और इंटर्नशिप्स लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं। तो देखिए कितने सारे तरीके हैं, हम इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीके अप्लाई करते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप इसमें से एक दो तरीके भी अप्लाई करते हैं, मैं तो रिकमेंड करूंगा सारे करिए, लेकिन शुरू करने के लिए आप एक दो तरीकों से भी शुरू करते हैं, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने करियर इंटरेस्ट को सेट करें। इसको सेट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपने जॉब टाइटल, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जाना है डिजिटल, या आप जाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या डिजिटल मीडिया क्रिएटर, तो एग्जैक्ट जॉब टाइटल डालिए, आपको मीडिया क्रिएटर में जाना है या मार्केटिंग मैनेजर में जाना है। लोकेशन इन योर करियर इंटरेस्ट, क्या किस लोकेशन के लिए और कौन सी जॉब टाइटल के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और आप अपनी ओपन कैंडिडेट सेटिंग्स, तो जैसे नहीं एक आपने देखा होगा लिंक्डइन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे सेटिंग होती है। अगर आप एक हायरिंग मैनेजर हैं तो आप लिखेंगे कि मैं हायर कर रहा हूँ, तो पर्पल रंग का बैंड आता है। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो आपके फोटो के नीचे कहा जाता है ओपन टू वर्क। तो ये अपना एक कर दीजिए ओपन कैंडिडेट सेटिंग, ताकि लोगों को पता चले कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको नौकरी की जरूरत है, या आप काम करने के लिए अवेलेबल हैं। डाउनलोड द लिंक्डइन जॉब सर्च मोबाइल ऐप, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको डाउनलोड कर लीजिए, इट इज अ वेरी बेनिफिशियल ऐप, और डेफिनेटली इससे बहुत आपकी रिकमेंडेशंस आती हैं। जब भी जॉब्स को सर्च करें, आप जॉब्स को डेट पोस्ट के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, किस दिन ये जॉब पोस्ट हुई है। आप जॉब टाइटल से सर्च कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर है, डिजिटल मार्केटर है, डिजिटल वीडियो वीडियो एडिटिंग है या वीडियो क्रिएटर है, ठीक है, मोबिलाइजर है, ट्रेनर है, टीचर है, कोच है, मेंटोर है, राइटर है, कोई भी। तो आप जॉब टाइटल सर्च करिए, कंपनी के नाम से, फंक्शन, इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री की है, एक्सपीरियंस लेवल और कीवर्ड्स के सारे तो आप सर्च कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले करियर इंटरेस्ट को डालिए, जॉब सर्च करिए, कंपनीज के पेजेस को फॉलो करिए, लोगों को मैसेजेस करिए। हाँ ध्यान रखिए, प्रोफेशनल मैसेजेस ही करने हैं। किसी भी अच्छी जॉब को ये मेक श्योर करने के लिए कि आपकी प्रोफाइल तक वो पहुंचे, तो ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रोफाइल करेक्ट डिटेल्स के साथ भरी हो। लोग इसी में गलती कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल मेक मिस्टेक्स, कि वो अपना वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स और इंफॉर्मेशन जो होती है लोकेशन की, यही गलत अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, आप अपने सभी वर्क एक्सपीरियंस को प्रॉपरली उसमें रिफ्लेक्ट करें, अपने सभी स्किल्स को मेंशन करें, और लोकेशन की इंफॉर्मेशन को मेंशन करना ना भूलें। किस लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, किस लोकेशन में आप रहते हैं, आपकी करंट और टेम्परेरी पोजीशन क्या है, कहाँ पर हैं, कहाँ पर बेस हैं, तो ये सभी चीजें। और रिव्यू जरूर करिए कि आपको कौन कौन सी जॉब्स में इंटरेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिव्यू करते रहें कि मेरी इंटरेस्ट की जो जॉब्स हैं वो क्या है। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको उनको प्रॉपरली फिल करना है। तो जब हम करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि आप भी इस तरह का कैप्शन लिखते हैं, मैं पढ़ता हूँ ये क्या लिखा है। ये मिनियापोलिस के हैं, एक ग्रेजुएट है, नाम को हाइड किया हमने, हम एनोनिमस है। आई फाउंड माई सेल्फ स्ट्रगलिंग टू गेट एनी लीड्स when looking for my first real job. Then I amped up my job searching by utilizing LinkedIn to find positions, research companies, identify contacts and hiring managers, and began reaching out to the actual people. By mid-July, I was fortunate enough
to land a salaried position with full benefits. Just imagine, ये बंदा कितना खुश होगा कि इतनी स्ट्रगलिंग, मतलब अपनी नौकरी के लिए बहुत परेशान था और लिंक्डइन का प्रॉपर इस्तेमाल किया, सही तरीके से कॉन्टैक्ट्स आइडेंटिफाई किए, हर एक मैनेजर से बात की, लोगों तक पहुंचा और कुछ ही दिनों में उसको एक बहुत अच्छी जॉब मिली और विद फुल बेनिफिट्स। ये पॉसिबल है दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल है। बहुत लोगों को नौकरी मिल रही है, बहुत लोग अपना करियर बना रहे हैं, आप भी बना सकते हैं। एंड डेफिनेटली यू एंड मी एंड all of us need to optimize our LinkedIn profile, make it sure that we fill all the details very carefully. Let it be our job location, work preferences, and our past experiences. We have to update each and everything with utmost care. We have to build our brand. That is most important. That is why the name of this presentation was building your personal brand. Once you create your brand in the eyes of the people, and that too who are professional, remember, knowledge and jobs and career, they are not anything that are highly difficult. They are quite easy for people who do hard work. So guys, thank you so much for seeing this video. I hope आपको अच्छा लगा होगा और हमने इस वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है इन अ नटशेल कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है और कैसे करना है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।